Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is another important video in which I will discuss all your queries regarding the PhD. So many of you were asking so many questions and so many doubts like is there job guarantee after PhD or how much time duration it takes to complete a PhD, and there are so many other doubts as well. So I have planned that I should provide the answer in a complete video format that will be helpful and beneficial for every GRF who is planning to do PhD in this year or in the next year. So if you like my efforts, hit the like button and do subscribe my channel for more such content. And do watch the video till the end to get answers of all your doubts. So the first question is whether we should do PhD or not. So basically we know that after the graduation and post-graduation we can go for the PhD. So the question is whether PhD is worth it or not. So the answer to this question that PhD is worth it or not depends on so many factors. So I will discuss all these factors which are so much influential in deciding that whether to do the PhD or not. So मैं सारे ही factors जितने भी हैं कि हमें PhD करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक एक factors discuss करूँगी बहुत ही डिटेल में so that you will be able to decide by yourself only कि हाँ मुझे PhD करना है या फिर नहीं करना है. So let's start it. So our first question of today's video is whether you want to do PhD, so you should do it or not. So this depends on so many factors. The first and the foremost factor is the financial assistance during your whole tenure of the PhD. And the second most important factor which I find that it can also influence your PhD is the family support, that whether your family is supporting for such a longer duration or not. And apart from that, your physical as well as mental fitness is also an influential factor that will decide that whether your PhD will be completed on time or whether it will take time. And apart from that, your supervisor or your PhD advisor is an important factor that will affect your journey, and also it will decide so many factors. So I will discuss all these factors because this is my personal opinion that all these factors play a major role that you should know. और मेरे केस में मैं ये मानती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें पहले से आपको पता हो बिफोर स्टार्टिंग योर PhD, देन यू विल टेक अ वाइजर डिसीजन. अगर आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी सो जो आपका डिसीजन होगा वो हो सकता है कि अप्रोप्रिएट ना हो, बट इफ़ यू विल कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स वेरी केयरफुली देन यू गोना डिसाइड द राइट थिंग फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो द foremost thing is before starting your PhD you should have a financial assistantship. So this financial assistance is very much important if you are talking about such a longer research journey. If you don't have any financial assistance, so I can guarantee you कि आप बहुत ज़्यादा stress में रहेंगे. Whatever be the family situation, whatever be the condition of our family, never mind, we should have our own financial assistantship in the form of JRF as well as SRF. आप जो इतना competitive environment में fight कर रहे हैं, you are giving the CSIR exam, DBT JRF exam or any other JRF related exam who provide fellowship for PhD, you all are fighting for it. So what is the benefit of it? Because for rest of your PhD tenure, you will get a good amount of fellowship that will not just help you but also it will ensure you so that you can use that fund wisely for your PhD. And अगर आपके पास financial assistance नहीं रहता है, suppose हम अगर इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सक्षम होते हैं कि वो अपना पूरा जो PhD टेन्योर है वो अपने घर से ही रह के कर सकते हैं. इट मीन्स कि देयर फैमिली विल सपोर्ट देम फाइनेंशियली एज वेल, बट सबके साथ में ऐसा सिचुएशन नहीं होता है. सो वी हैव टू कंसिडर दैट ग्रुप ऑल्सो. सो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी फेलोशिप, डोंट स्टार्ट योर PhD अंटिल यू विल गेट इट. बिकॉज ऐसा तो ये है नहीं कि ये 1 साल का है या 2 साल का है. इट इज़ अबाउट मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 6 years. सो इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन का आपको कोई रिसर्च परस्यू करना है एंड अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, दिस विल क्रिएट अनवांटेड स्ट्रेस एज वेल एज so many disturbance in your journey. So my advice is
कि सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए MSc स्टार्ट करते ही, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट करते ही यू शुड फोकस ऑन क्लियरिंग एनी GRF एग्जामिनेशन, आइदर DBT GRF या फिर CSI या नेट, एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना PhD. सो द फर्स्ट फैक्टर विच डिसाइड दैट वेदर यू शुड डू और नॉट, सो इट शुड बी योर फाइनेंशियल असिस्टेंस. आपके पास बहुत अच्छा कोई फेलोशिप होना चाहिए, बिकॉज दी फेलोशिप इज़ अबाउट 5 years कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए आपको फेलोशिप मिलता है, पूरे 5 साल के लिए. एंड ऑल्सो फेलोशिप के साथ ही साथ आपको रिसर्च ग्रांट भी मिलता है, सो दैट आपके पास से कोई पैसे वेस्ट नहीं होते हैं आपके रिसर्च में. इंस्टेड यू आर गेटिंग अ रिसर्च ग्रांट, यू कैन यूज़ दैट ग्रांट फॉर योर रिसर्च पर्पज. सो this is the first factor which is the deciding factor. Now the second most influential factor as per my personal opinion is your family support. So you must be wondering that how it affects our PhD. So as I've already mentioned that PhD is not about a single year. It is about a longest duration of about 4 to 6 years. अगर हम बात करें एक आइडियल PhD की, so it is in between 4 to 5 years. बट इट वेरीज फ्रॉम रिसर्च टू रिसर्च. अलग अलग रिसर्च का रिक्वायरमेंट अलग होता है. सो ऑल इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च वी आर डूइंग. सो एज पर माई ओपिनियन, इफ़ यू हैव योर फैमिली सपोर्ट, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, सो यू कैन गो इन अ लॉन्गर रन. बट इफ़ यू डोंट हैव योर फैमिली सपोर्ट, इट विल बी क्वाइट टफ फॉर यू टू कम्प्लीट योर होल जर्नी. बिकॉज PhD एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि PhD सिर्फ एक एकेडमिक्स का पार्ट नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट. अगर आपको फैमिली सपोर्ट करती है, सो आप जितना भी आपके PhD के जर्नी में हर्डल्स आएंगे, सो यू विल बी वेल केपेबल ऑफ टू फाइट विद देम, बिकॉज आपको घर से कोई प्रेशर नहीं है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि आप हायर एजुकेशन ले, बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट दी गर्ल्स, सो हमें पता है कि जो गर्ल्स हैं उनके घर में फैमिली प्रेशर भी होता है. I'm not talking about every girl, but in some situation there is a chances that उनके घर में family pressure होता है कि you have to marry after your post graduation or you have to do job after your post graduation, because PhD का जो tenure है वो बहुत longer होता है. So सबकी family या सबके घर में इतना ज़्यादा time नहीं दिया जाता है. But ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप अपने घर में अच्छे से बात कीजिए. यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स क्लियरली दैट ये जो जर्नी है वो बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है, अनप्रडिक्टेबल है. आपको अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे से रन हो रहे हैं, सो इट विल बी वेरी मच स्मूदर. बट अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपको किसी टाइप का भी अपना एक्सपेरिमेंटेशन में या फिर राइटिंग वर्क में या किसी भी रिसर्च के पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, सो इट विल टेक टाइम एंड ऑल्सो देन इट विल कॉज स्ट्रेस. सो ये कई बार बहुत स्मूथ चलता है एंड कई बार इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि इट विल क्रिएट सो मच ऑफ स्ट्रेस. सो आपको क्लियरली ये सारे फैक्टर्स अपने पेरेंट के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, बट हमारी फैमिली को वो पूरे जर्नी का एक आउटलाइन आपको बताना चाहिए, सो दैट योर फैमिली विल सपोर्ट यू. बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस, एट सम टाइम ऑफ योर PhD यू विल फील सो डिप्रेस्ड एंड लोनली. उस टाइम पे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ही आपको सपोर्ट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो क्रिस्टल क्लियर बातें रखिए अपनी फैमिली के सामने, एंड अगर वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, देन यू कैन गो फॉर इट. एंड अगर अब वो सपोर्ट नहीं कर रही है, सो इट विल बी लिटिल बिट टफर, बिकॉज सीधी सी बात है, अगर किसी भी डिसीजन में हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमारे साथ में रहती है, सो वो जर्नी बहुत ईजी एंड स्मूथ होती है. एंड अगर हमारी फैमिली किसी डिसीजन में हमारे साथ नहीं रहती है, सो वो कहीं ना कहीं बहुत टफ हो जाता है. मैं ये नहीं कह रही कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, बट आई एम सेइंग कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होगी, बिकॉज आपको घर पे भी हैंडल करना है सारी चीज़ें एंड आपका रिसर्च तो एक अलग चल ही रहा है. सो यू हैव टू मैनेज दीज 2 थिंग्स ऑन अ सिंगल स्केल. सो दिस विल बिकम क्वाइट टफ. सो इफ़ यू हैव फैमिली सपोर्ट, गो फॉर इट. एंड अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, सो आप उन्हें मनाइए एंड you can understand, जैसा भी मैंने बताया अभी. Now the third factor is this physical and mental fitness. अब PhD जो है वो लॉन्ग टर्म का है. अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं या फिर मेंटली फिट नहीं है, सो PhD इज़ नॉट फॉर यू. बिकॉज आपने बहुत सारे मीम्स भी पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे मीम्स आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, बहुत सारे पोस्ट आते हैं PhD स्कॉलर्स पे, रिसर्च स्कॉलर्स पे. पूरे PhD के दौरान, पूरे PhD ट्यूनर के दौरान आप बहुत ज़्यादा
मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च में प्रॉब्लम आती है, उस वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सही भी है, बट कितने एक्सटेंट तक सही है ये मैं आपको बताती हूँ। सो सपोज़ आपका जो रिसर्च जर्नी है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, आप अपना सारा एक्सपेरिमेंटेशन वर्क अच्छे से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से हो रहा है, बट अब जाते हैं आप पब्लिकेशन के लिए। सो पब्लिकेशन आप जो करना चाह रहे हैं, ड्यू टू सो मेनी रीजंस वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली ये रिजेक्ट हो रहा है। सो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू कि आपका एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट तो बहुत अच्छे से चल रहा था, बट आप एक जगह स्टक ऑन हो चुके हैं, जो है पब्लिकेशन। बिकॉज PhD में आपका जितना भी रिसर्च वर्क है, यू शुड हैव पेपर टू सबमिट योर थीसिस, सो दिस विल क्रिएट अ प्रेशर। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपका राइटिंग वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, बट आपका जो रिसर्च है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, आपको जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लाइक अगर मैं पर्सनल बात करूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। सो आई एम एबल टू गेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये हर एक रिसर्च स्कॉलर की लाइफ में आती है ये प्रॉब्लम कि आप कुछ भी प्लान करते हैं, सो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन हेल्प नहीं मिलती है, या फिर आपको एग्जैक्टली कैसे करना है वो पता नहीं चलता है। आप पेपर टू पेपर बहुत सारे पेपर रेफरेंस आप रेफ़र कर लेते हैं, बट उसके बाद भी आपका काम नहीं बनता। यू नीड एडवाइस, यू नीड सपोर्ट, यू नीड गाइडेंस। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फिज़िकल इलनेस तो देती ही हैं, उससे ज़्यादा मैं कहूँगी मेंटल इलनेस देती है। बिकॉज एट सम टाइम आपको लगेगा कि आप स्टक ऑन हो गए हैं, आप ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। क्योंकि PhD का जो ड्यूरेशन है, अगर आप बात करें फर्स्ट 2 ईयर्स की, फर्स्ट 2 ईयर्स आई गेस बहुत सही चलता है, बिकॉज वो नया नया रहता है, तो हम बहुत ज़्यादा अपना पूरा पोटेंशियल लगा देते हैं। बट जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में, थोड़ा सा हम काम करते हैं, बट उस टाइम क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो हमारे एक मोटिवेशन रहता है वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे हमारे रास्ते में हर्डल्स आते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप मेंटल और फिज़िकल थोड़ा सा फिट रहें। मेंटली तो बहुत ज़्यादा फिट रहें। फिज़िकल इलनेस आप तभी हील कर सकते हैं जब आप मेंटली फिट हो। मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई एलिमेंट है फिजिकली, सो यू कैन हील दैट एलिमेंट इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग। मार्क माई वर्ड्स, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम लोग दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, अगर हमारा माइंड पे कंट्रोल है, तो चाहे हमें जितने भी फिजिकल इलनेस हो, हम 1 दिन रेस्ट करें, 2 दिन रेस्ट करें, 3rd डे वी विल से दैट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। सो आपको पूरे PhD के टेन्योर में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन माई PhD ऑल्सो, आई हैव कॉन्स्टेंटली फीड इन माई माइंड दैट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट एंड आई विल डू इट। सो मैंने किया, एंड आपको भी यही ध्यान रखना है कि जो भी आपके बॉडी में एलिमेंट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो, उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बट अपने मेंटली स्ट्रांग रहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अपने माइंड में बस एक बात ध्यान से रखना है कि जो भी प्रॉब्लम आपके रिसर्च में, राइटिंग में या किसी भी स्टेप में आ रही है, वो आप ओवरकम करने में बिल्कुल भी कैपेबल हैं। आप भले उसमें 1 दिन ले, 2 दिन ले या 1 महीने ले, बट आप उसके बाद में उसे ओवरकम करेंगे विदाउट डीमोटिवेटिंग या उसे वहाँ पे रोके। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नाउ द थर्ड फैक्टर इज़ योर PhD एडवाइज़र और योर सुपरवाइज़र। मोस्ट ऑफ द PhD journey is depend on your supervisor, that how smoothly it will go and how smoothly it can completed, because आपकी सारी चीज़ें आपके PhD एडवाइज़र के थ्रू ही जानी है। So you have to incorporate his or her advice also in your PhD thesis and in your research also, because कई बार ऐसा होता है कि clashes होते हैं। सपोज़ कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपने रिसर्च में, एंड योर PhD एडवाइज़र इज़ जस्ट नॉट अग्रीइंग विथ योर वॉट एवर यू वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट इन योर रिसर्च। सो दिस विल ऑल्सो अगेन क्रिएट सम मेस। सो इट्स बेटर कि क्लियरली आप बात करें कि आपके सुपरवाइज़र या आपके एडवाइज़र क्या चाहते हैं एंड आपका क्या रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आप कोई चीज़ के लिए डिसएग्री कर रहे हैं, सो इट शुड बी विथ वेल एक्सप्लेनेशन कि आप क्यों नहीं चाहते हैं करना, या फिर अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो यू शुड हैव वेल एक्सप्लेनेशन कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। सो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है, सो यू शुड हैव अ क्लियर एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन यू एंड योर PhD एडवाइज़र। अगर आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर अगर आपने अपने से बहुत ही अलग PhD एडवाइज़र चूज़ कर लिया, सो दिस विल ऑल्सो क्रिएट मेस।
मोस्ट ऑफ द मैंने PhD देखा है जिसका फेलियर का रीज़न हो जाता है कि आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही केसेस में ऐसा होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव हर्ड कि मेरे और मेरे PhD एडवाइज़र के बीच में बात नहीं बनी, या हमारे थॉट प्रोसेस अलग अलग थे, हमारा जो भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था वो मैच नहीं हुआ, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैश. सो आई विल सजेस्ट कि आप PhD सुपरवाइज़र चूज़ करने से पहले उनका रेलेवेंट वर्क देखें, उनका रिसर्च प्रोफाइल देखें कि क्या वो अलाइन हो रहा है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से, आपके रिसर्च प्रोफाइल से, जो आप करना चाहते हैं क्या वो उसी फील्ड से रिलेटेड है. बिकॉज आई विल सजेस्ट कि जिसका जो रिसर्च फील्ड होता है उससे वो बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होता है. इट इज़ जस्ट कि थोड़ा बहुत डेविएशन चलता है. इट इज़ जस्ट कि नैरो रेंज में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं यू कैन गो फॉर इट, बट एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना कि अगर वो फील्ड ए का है अगर वो फील्ड बी में चला जाए, सो दिस इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल. बिकॉज PhD एडवाइज़र भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है, बिकॉज उसे PhD अवॉर्ड करानी है अपने कैंडिडेट को, सो इट विल बिकम मोर टफ. सो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी जिसमें एक्सपर्टीज़ हो वो वही कराएं. बट इफ़ यू आर वेल इनफ कि आप कर सकते हैं, सो कन्विंस कीजिए, बट there should be a stronger understanding in between you and your PhD advisor because the duration is long. and जैसे घर में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, हर डिसीजन में साथ देती है, आपके PhD एडवाइज़र के साथ भी आपका घर से बाहर आपके वही पेरेंट है, वही फैमिली है. सो यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन यू एंड योर एडवाइज़र. सो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है. सो जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप, मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस, एंड इसके अलावा फैमिली का सपोर्ट एज वेल एज PhD एडवाइज़र और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग, ऑल दीज 4 फैक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल इन डिसाइडिंग दैट वेदर यू शुड डू PhD और नॉट. नाउ अ मेजर क्वेश्चन यू ऑल आर आस्किंग टू मी इज़ कि जॉब, क्या जॉब मिलेगी PhD के बाद या नहीं मिलेगी. सो आई विल आंसर कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी वाला क्वेश्चन जो है उसके बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, मैं उसके हिसाब से आंसर दूंगी. ऐसा भी नहीं है कि जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी, एंड ऐसा भी नहीं है कि PhD का अवार्ड होते ही, डिग्री आते ही आपको पूरी जॉब मिल जाएगी. सो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि आपको तुरंत जैसे आपने डिग्री दिखाया और आपको जॉब दे दिया गया, या ऐसा भी नहीं है कि आपने PhD कर ली और आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा. सो हम जैसा कि जानते हैं लाइफ साइंसेस में, बायोटेक्नोलॉजी में देयर इज़ सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन. सो यू हैव दैट स्किल्स कि आप जॉब ले पाएँ. यू शुड हैव गुड पब्लिकेशंस, बहुत अच्छे आपके पब्लिकेशंस होना चाहिए. रिसर्च स्किल्स आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपको इंस्ट्रूमेंटेशन जितने होते हैं बायोटेक लाइफ साइंसेस में उसका प्रो होना पड़ेगा. यू शुड हैव गुड राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स. You should have pro in deciding whether to do this thing or not. Because in so many interview I have appeared, I have observed that कि जो आपके पैनलिस्ट होते हैं वो आपको एक सवाल ज़रूर पूछते हैं जो कि मुझसे भी हर बार पूछा गया है, that whether you are a good decision maker or not. Because as a PhD they consider कि हमें डिसीजन मेकिंग में हमारा जो कमांड है वो बहुत अच्छा होगा कि कोई भी काम हमें करना है या नहीं करना है. If we are doing it, we should have proper explanation. If we are denying it, then also we should have proper explanation. So ये सारे factors जो हैं वो आपको जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं. What are those factors? Good publication, good research skills, good communication and writing skills, good decision making और team lead करना. ये सारे जो factors हैं वो कहीं ना कहीं add on कर देते हैं आपके जॉब मिलने में. और ये जो सारे skills हैं वो कब आते हैं? जब आप एक PhD करते हैं. सो PhD इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री, इट इज़ मोर और लेस लाइक आप पूरी ज़िंदगी कैसे जीना है वो भी सीखते हैं रिसर्च के थ्रू. क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपको खुद लेने होते हैं, एंड कई बारी वो डिसीजन जो होते हैं वो रॉन्ग भी हो जाते हैं, कई बारी वो डिसीजन बहुत अच्छे साबित होते हैं. सो इट इज़ अ मिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग. सो ऐसा भी नहीं है कि आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट येस आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एंड अगर मैं बात करूँ एक MSc की और एक PhD की, सो डेफिनेटली एक PhD की सैलरी ज़्यादा होती है, एंड एक PhD को और MSc को कंसिडर किया जाए एकेडमिक्स में तो PhD को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा. बिकॉज इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि PhD का जैसे मैंने बताया ऑल दिस स्किल्स दे आर ओइंग इट एज कम्पेयर टू दी MSc कैंडिडेट. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो एक्सेल इन दिस फील्ड ओनली, एंड अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा रिसर्च में रहें या हमेशा बायोटेक लाइफ साइंस या R&D में रहें, एंड आप अगर बहुत लॉन्ग रन में जाना चाहते हैं इसी फील्ड में, सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके चारों फैक्टर्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए अगर वो ओके हैं,
देन यू शुड गो फॉर इट. बट उनमें से अगर 2-3 फैक्टर भी आपका ओके नहीं है, अगर आपको फील्ड चेंज करना है, आप अभी श्योर नहीं हैं, सो आई विल सजेस्ट कि आप PhD मत कीजिए. PhD नहीं करने के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं कि MSc के बाद क्या किया जाए अगर हमें इसी फील्ड में रहना है तो PhD के अलावा. सो अगर आपको वो भी जानना है, डू कमेंट बिलो, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको. सो जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं, आई विल अगेन रिपीट कि अगर उनमें से चारों फैक्टर्स आपके ओके हैं, आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं, देन PhD इज़ फॉर यू. बट उनमें से अगर कुछ भी इम्बैलेंस है, सो आई विल सजेस्ट कि आप फिर से एक बार सोचिए एंड देन डिसाइड. डिसीजन इज़ ऑल योर्स. So this is all I want to discuss. Thank you so much for watching, and do like, share and subscribe my channel for more such videos.